ہے ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے، ان پر تنقید کے نشتر برسائے جاتے ہیں۔ چونکہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ نون لیگ کی جانب سے شریف فیملی کے اس کیس کے حوالے سے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے ان کی بے گناہی کے حوالے سے آرگومنٹس بھی دیے جا رہے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ آپ کو اس طرح سے تو ڈائس پر کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی جس طرح سے باقی دوست، ان کا اپنا کام ہے، وہ بھی بخوبی نبھا رہے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بات اثر بھی رکھتی ہے، معنی بھی رکھتی ہے اور اس کے پیچھے سیاق و سباق بھی ہوتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب شروع کریں، جب آپ کی کولیگز جو ہیں سر وہ اب سے نہیں جب سے کیس شروع ہوا وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کی کچھ مزید وضاحت ہونا ضروری ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یو آر دا رائٹ پرسن کہ جو اگر وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہیں تو ان کی وضاحت کر دیں، نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے ان کا پرسنل اوپینین بھی ہو، لیکن ایسا بہت کم ہو رہا ہے کہ ان کا پرسنل اوپینین ہو۔ جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے 5 جولائی کو اب پیش ہونا ہے جی آئی ٹی میں۔ اس پیشی کو لے کر کے اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں میں چاہوں گا وہ آپ سن لیں۔ آخری بات اسحاق ڈار صاحب نے کی، سب نے کہا کی بیٹی ہے، کیوں آخر مریم کو بلایا، لیکن آخری تنقید کا نشتر آج کے دن میں اسحاق ڈار صاحب نے چھوڑا ہے، ذرا وہ سن لیں آپ۔ مریم نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی نہیں ہے، وہ میری بھی بیٹی ہے، وہ قوم کی بھی بیٹی ہے۔ کیا جناب عمران خان کی کمپنی نیازی سروسز میں ان کی بہنوں کے نام نہیں ہے جنہوں نے ڈائریکٹر طور پہ سائن کیا؟ مریم کا اور کیا قصور ہے؟ عظمیٰ بہن نے اور علیمہ بہن نے پٹیشن میں کاغذ لگے ہوئے ہیں۔ کل کو اگر عظمیٰ بہن علیمہ بہن کو یہاں بلایا جاتا تو مجھے برا لگے گا، اسی طرح مجھے برا لگ رہا ہے کہ مریم نواز شریف کو یہاں بلایا گیا ہے یا بلایا جا رہا ہے۔ یہ یقینی طور پہ سب کو برا لگے گا، مریم صاحبہ ہماری بھی بہن ہے۔ مجاہد صاحب آپ نوٹ کریں گے ذکر بی بی مریم کا ہو رہا تھا اور جو ہے وہ کلپس جو ہے وہ بی بی شہید کے چل رہے تھے، تو وہ صرف یہ شاید بتانے کے لیے کہ وہ بھی قوم کی بیٹی تھی سر، وہ بھی پیش ہوتی تھی، وہ بھی جیلوں میں یوں ہی جا کے ملاقاتیں کرتی تھی، تب آپ کو برا لگتا تھا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کلپ دیکھا ہے جو آپ نے چلایا نا، یہ ہے مرتضی بھٹو کے قتل کا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک آصف زرداری کو ملاقات کے لیے جب جاتی تھی وہ بھی چلا دیتا ہوں، وہ بھی چلا دیں، اس سے کوئی فرق، مجھے نہ بھی چلائیں تو مجھے پتا ہے۔ برا تو لگتا تھا نا سر؟ نہیں مجھے برا بھی نہیں لگتا تھا، میں بڑی صاف بات کرتا ہوں میں کہ چونکہ اب مریم کی بات کرنے لگا ہوں تو ان کا برا۔ دیکھیں آصف زرداری صاحب کی کوئی سیاسی زندگی نہیں ہے سوائے کرپشن کے، ان کے اوپر ٹوٹل چارجز، کوئی کبھی کسی تحریک میں حصہ نہیں لیا انہوں نے، کبھی کسی پولیٹیکل ڈیسیژن میں، ایون بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی وہ نہیں رہے۔ اب بھی جب وہ آئی تھی مرڈر ہوئی ہیں تو وہ انہیں چھوڑ کے آئی تھی، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا لنڈن میں، سارے تھے، وہ نہیں تھے، اس کو چھوڑ دیں، ان کا مسائل اور تھے۔ بی بی ایک پولیٹیکل، میں انہی کا ذکر کروں، زیادہ صاحب کی تو بات بھی نہیں، بی بی پولیٹیکل تھی، لیکن اس کے دور میں جو بھی ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا، مرتضی بھٹو مرڈر ہو گیا، اب اس کا کیس تو چلنا تھا نا۔ اچھا مرتضی بھٹو کی سب سے پہلے فیملی دیکھی جائے گی نا کہ وہ کیا کہہ رہی، وہ کہہ رہی تھی انہوں نے قتل کیا ہے، تو یہی کچھ تو جے آئی ٹی میں ہو رہا ہے سر، جب پوری فیملی کا احتساب ہو رہا ہے تو مریم بی بی اس کا حصہ ہے نا سر۔ ایسا نہیں ہے نا میرے بات یہ ہے، ان کے خلاف ایف آئی آریں تھیں، مقدمے تھے، مریم کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، ایون نہ حسن کے خلاف ہے نہ حسین کے خلاف ہے، بلکہ یہ واحد جی آئی ٹی ہے جس کی بنیاد کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، پاناما کوئی مقدمہ نہیں ہے، پاناما کوئی کیس نہیں ہے، بلکہ پاناما والوں نے خود کہا ہے کہ آف شور کمپنیاں رکھنا کوئی برائی نہیں ہے، اگر ہے بھی۔ اچھا اب اگر فرض کرو ہمارے ملک میں اس کو مقدمہ سمجھ لیا گیا ہے، اس کو بہت بڑی برائی سمجھ لیا گیا ہے، تو بھائی پرویز اپنا میاں صاحب کی تو نہیں ہے نا، بے نظیر بھٹو کی ہے، میاں صاحب کی نہیں ہے، اسحاق ڈار کی نہیں ہے، عمران خان کی نکل آئی ہے، بچوں کی ہے، ان کے بچوں کی ہے، تو پھر وہ پیش ہونے دینا ان کو، اس پہ کیوں آپ اتنا واویلا مچا رہے ہیں؟ دیکھیں واویلا پتہ بچوں پہ مریم بی بی بینیفیشری بھی کہیں نہ کہیں پائی گئی ہیں، اس پر بھی شکوک و شبہات ہے۔ واویلا پتہ کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی فلسفی ہوتی ہے، کہ جب آپ انصاف کیا چیز ہوتی ہے کہ تمام کے ساتھ آپ پوچھیں نا ذرا پرویز مشرف سے بھی، آپ عمران خان سے کیوں نہیں پوچھتے، آپ جہانگیر ترین سے کیوں نہیں پوچھتے، آپ علیم خان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ فیصلہ سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف دیا نا، وہ پٹیشن آپ کے خلاف تھی، پٹیشن نمبر 29 اور 30۔ بات یہ نہیں ہے، جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن تھا نا،
اس کے تحت ہوا نا سارا. نہیں سر، یہ 3 پٹیشنر ہیں اس میں، شیخ رشید، عمران خان اور جماعت اسلامی. ہاں یہ بھی بعد میں شامل ہوئے تھے، لیکن اس میں سو موٹو بھی تو ہوا تھا نا. اچھا چلے اس کو چھوڑ دیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب دا لا تو نہیں ہے نا سر. جے آئی ٹی جو ہے، جے آئی ٹی کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ اس سے ایکسٹرا مینڈیٹ بھی اس کو دیا جا سکتا تھا کہ باقیوں کو بھی کر لو. اچھا حالانکہ جو اس کا مینڈیٹ ہے وہ اس سے ویسے ہی تجاوز کر چکی ہے. تو بھئی اگر آپ تجاوز ہی کر چکے ہیں تو پھر مطلب ٹرانسپیرنسی ہوتی اور آپ باقی لوگوں کو بھی لے آتے تو کوئی شور نہ بچتا. چلیں اگر آپ فرض کریں چونکہ آپ کا یہی ماننا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا، بے گناہ ہے، تو اگر یہ جے آئی ٹی کل کو آپ کا کڑا احتساب کر کے آپ کو بے گناہ کر دیتی ہے تو اچھی بات نہیں ہے سر؟ اچھی بات ہے، گزر جائیں اس پروسیس سے، میں سب گزر جائیں. میرا نقطہ اور ہے، میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی ان کا احتساب کر رہی ہے. پاناما ہی ہو رہا ہے نا سارا جھگڑا، تو پاناما کا ہے نا. جن کا پاناما میں نام نہیں ہے، ان کا پاناما میں نام ہے، ان کا نہیں کر رہی. بھائی وہ 448 اور بھی ہیں. آپ بھی پیٹیشن لے کے پہنچ جائیں جس طرح یہ پہنچے تھے. یار دیکھیں نا، میری بات سنیں، میں لے کے پہنچوں یا نہ پہنچوں یہ بات کی بات ہے. اس سے پہلے جو ہو رہا ہے اس پہ رہنے دیں چیزوں کو، کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس مطلب اختیار ہے 100 موٹو کا. ایک اتنا بڑا کیس ہو رہا ہے، یہ سوچنا پڑتا ہے نا کہ بھائی یہ ایک پلیئر ہیں اور بھی پلیئر ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹیشنر ہیں یہ کرپشن کے خلاف ہیں ہی نہیں. اس لیے کہ کرپشن کے خلاف وہ ہوتا ہے جو خود کرپٹ نہ ہو، جو خود کرپشن کر رہا ہو مختلف اقسام کی، بلکہ صرف ایک نہیں. تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اور چکر ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، کچھ اور معاملات ہیں. جیسے 2014 میں سے اس پہ میرا نہیں، بہت سارے اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر بھی چلے. اچھا ویسے آپ کی اسی گفتگو پہ اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ کلپ ریڈی ہے کہ دھرنے کا جراثیم ابھی ختم نہیں ہوا، جیسے آپ نے 2014 کی بات کی ہے، میں آپ کی اجازت سے سر وہ چلانا چاہتا ہوں، وہ چلا لیں کہ دھرنے کے جراثیم والی بات یہ خواجہ سعد صاحب نے کی، اگر میں غلط نہیں ہوں. ذرا چلائیں جناب، یہ دکھائیں کہ کون جراثیم ہے جو ختم نہیں ہو رہے ابھی تک. کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں، اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی تھیں، اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیسے. میں نے خود تو نہیں سنی، لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں. کس کی آڈیو ٹیپ؟ اس میں اس کا بھی آواز تھی اور کئی لوگوں کی آوازیں تھیں، لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی. امپائر پاکستان کے آئین اور جمہوریت پاکستان کو 60 کی دہائی میں واپس لے جانے کی کوشش ناکام ہو گئی، لیکن دھرنے کے زخمی سانپ ادھموے ہوئے مرے نہیں. میں نے 2 سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سانپ ادھموے ہو گئے ہیں، مرے نہیں ہیں. سانپ ادھموئے ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں. سر وہ جو سانپ تھے دھرنے کے، اس کا ذکر آپ کا جو میں نے انٹرویو چلوایا اس میں آپ نے کر دیا، وہ سانپ کون تھے. آج بھی آپ کی جماعت اس بات پر قائل ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جے آئی ٹی، یہ پینما کا کیس ٹیک اپ کرنا، یہ وہ دھرنے کا جراثیم ہے جو آج ادھموئی حالت میں آپ پر وار کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا جو آپ میری بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے والا جو میری جو وہ بات کی ہے نا، اسی کا ذکر اس بات میں نے جو بات کی، دیکھیں اس کا ایک سیاق و سباق ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں سٹینڈ کرتا ہوں اپنے، میں جو بات کرتا ہوں نا، میں وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں شیخ رشید نہیں ہوں کہ بات کہہ کے پھر منکر ہو جائے ہر چوتھے دن. اور سمیت عمران خان کے ایسے منکر ہوتے ہیں کہ جو 35 پنچر، اس کے بعد جب پکڑے گئے، یار یہ آدمی میرے جیسا ہو تو اپنا سر پھوڑ لے. میں دوبارہ اس پر آتے ہیں دھرنے کے جراثیم میں، دھرنے کے آپ نے دکھایا نا میرے بھائی، یہ دکھایا نا، تو آپ نے دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے، مجھ سے یہ سوال کیے گئے تھے کہ جی آپ کو ان دنوں میں کیا اطلاعات مل رہی تھی. مجھے جو اطلاعات مل رہی تھی وہ میں نے بتایا. ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کی. ایک بریگیڈیئر نے بھی کی جو ابھی بھی فوج سے اپنی پینشن لیتا ہے. اس نے میرے سے زیادہ سخت الفاظ میں بات کی، میرے الفاظ اتنے سخت نہیں تھے. میں نے تو کہا میں نے یہ سنا تھا. دوسری بات ایک اور میں کرتا ہوں، کیا اس میں چلو ایک آدھ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو اس میں جو مجھے اطلاعات مل رہی تھی، لیکن کیا امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی بات میں نہیں کی تھی؟
इमरान खान ने की। क्या यहाँ पे हमले जो थे और कहा था कि नवाज शरीफ को घसीट के निकालेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ये मैंने की थी। जमहूरियत की खबर क्या मैंने बनाई थी? इन सारे लोगों का इन सारी चीजों का नतीजा क्या निकलता है कि कुछ लोग काम डाल रहे थे ना, अभी यहाँ पे सवाल ये था। देखिए उस पे हम पिछले इंटरव्यू में भी आप क्लैरिटी दे चुके हैं, वो आवाम को अब क्लियर है, एंड यू स्टैंड बाय इट। जो मैंने आपका पिछला इंटरव्यू दिखाया वो इसलिए दिखाया, अर्ज सुनिएगा, अर्ज सुनिएगा। जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने बात की है ना कि धरने के जो सांप हैं वो अभी जिंदा हैं मगर अधमोई हालत में, मैंने आपकी बात इसके साथ चलाई क्योंकि आप उन सांपों का पहले जिक्र कर चुके हैं। सवाल मेरा ये है आपसे, आपकी जमात क्या समझती है कि धरने के सांप, जिनको आप सांप कहते हैं, वो आज भी जिंदा है? डोरियां वही हिला रहे हैं, कठपुतलियों वही हैं जो कठपुतलियां हिला रहे हैं? देखिए सांप कौन है? सांप इमरान खान है, सांप ताहिर कादरी है। ऐसे ना करें सर, पहले तो आप इसके पीछे किसी और का हाथ देखते थे। इनको तो कठपुतलियां कहते हैं सर, आप कहते हैं कठपुतलियां ही है। तो सांप भी तो वही हो, सांप में और कठपुतली में क्या फर्क होता है? उसके कुछ डोरी हिलाने वाला तो होता है। डोरी हिलाने वाला जो होता है ना वो तो नहीं नजर आता ना, वो तो नहीं नजर आता। उसका तो मतलब कि नाम लेते हुए मौत आती है। लगता है मिनिस्ट्री जाने के बाद आप बहुत एहतियात कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई एहतियात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ उसका तो नाम इस JIT ने नहीं लिया ना। अच्छा, तस्वीर लीक में क्यों नहीं लिया नाम? नवाज शरीफ को तो बुलाएंगे जी, वजीर खजाना को बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, उसका नाम नहीं लेंगे। आप ले लें सर नाम। नहीं, मुझे पता होता तो मैं ले लेता, मुझे पता ही नहीं है। सर नून लीग इतनी भोली भी नहीं कि उनको पता भी नहीं है। देखें मेरी बात पे एतबार करें, मैं फजूल बात नहीं करता। मुझे पता होता मैं भी लेता आपको, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन्हें बताना चाहिए उनकी सिट्टी क्यों घूमे भाई? इसका मतलब यह है कि इंसाफ नहीं हो रहा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं और भी बहुत सारी। अब तो ये बात हो रही है ना कि उन्हें तो सिर्फ साइन लिए जा रहे हैं JIT वालों से। अब तो ये बातें आ रही हैं ना, मतलब व्हाट्सएप कॉलों की भी बात हुई, इतनी ज़्यादा बात, इतना, यानी कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इनके कंडक्ट ने सही साबित कर दिए। अच्छा फिर भी चले जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, बुलाएंगे, चले जाएंगे, जा भी रहे। ऐसा कभी हुआ नहीं किसी और की हुकूमत होती और इस तरह से बुलाया जाता। तो वक्फा ले लूं सर, वक्फा ले लूं। वक्फे के बाद और बहुत हैं जो मुशाहिद साहब से करनी है। आप मुशाहिद साहब के कुलीग्स ने जो बातें की थी वो भी उनके सामने रखेंगे, देखते हैं उस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं वक्फे के बाद। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में।
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये ठंडे मिजाज की बात करते हैं, ठंडे आदमी हैं, ठंडे मिजाज के आदमी हैं। आज जो वोट जेटी में पेशी के बाद इमरान खान पर गरज बरस रहे थे तो वो इसहाक डार पुराने वाले इसहाक डार नहीं लग रहे थे। उन्होंने किस तरह से आज तनकीद की इमरान खान पर, और जेटी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस सारे का मलबा उन्होंने इमरान खान पर कैसे डाला, ये जरा सुने। तुम किस मुंह से इमरान खान, किस मुंह से तुम 62 की पिटीशन डालते हो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? अपने गिरबान में झांको तो तुम्हें नजर आएगा कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। वो तो उस जमाने में भी जब मुशर्रफ पीक पे था तो उनकी वो अपना जूतियां चाटते थे। वो यहूदी ब्यूटी को लेकर जाके वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। अब आज भी झूठे हैं, अब आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं, और आज आप भी फितरे का सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। सब बातें अपनी जगह नाजरीन, ये मैं मुशाहिद साहब से शिकवा करूंगा, इसहाक डार जैसे स्टेचर के आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे साहब पता नहीं आप आखिरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहूदी ब्यूटी को साथ लेके मुशर्रफ के तलवे चाटते थे और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे यहूदी ब्यूटी। सर ये उनकी बेगम के बारे में बात हो रही है, इमरान खान की जो अब वाइफ नहीं है लेकिन उस वक्त तो उसकी इज्जत थी ना, वो उसके बारे में इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी इसहाक डार साहब ने। देखें उनकी इज्जत के बारे में तो कोई बात नहीं की उन्होंने। सर उनकी बेगम जो साबका बेगम है उनके बारे में यहूदी ब्यूटी कौन है? यहूदी ब्यूटी होना या क्रिश्चियन ब्यूटी होना या मुस्लिम ब्यूटी होना कोई गाली तो नहीं है। मतलब कि अगर आप अब करना क्या चाहते थे? अब तो बमों के साथ इस्लामिक बम लगा हुआ है। मैं दोबारा सुना दूं, नहीं करना क्या चाहते थे? उसको इस्तेमाल करके वज़ीर और जो भी है देखें, बात ये है, आप मुझे एक बात बताएं, इसने जितनी भी बातें कही, मसलन जवारी का, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ कि मैं जवारी हूँ, इमरान खान ने। अच्छा मुझे आप एक भी चोर डाकू कहता है हिसाब बराबर हो गया सर। नहीं हिसाब बराबर नहीं हुआ। वो आपकी या पार्टी की किसी खातून पर तो ऐसी बात नहीं कर रहा ना। वो झूठ बोलता नहीं, उसकी यहूदी बेटी और यहूदी ब्यूटी
और यहूदी देखें ना, अब तो पहली बात तो ये कि अब वो उसकी बीवी नहीं है, बाकी यहूदी बीवी होना या ईसाई बीवी होना या मुसलमान बीवी होना या हिंदू बीवी होना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? सर वो जमामा नाम था, इस्लाम कबूल कर चुकी थी, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसको इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर बना, बात ये है यहाँ पर कम से कम इसको एडमिट तो करने के नहीं है गलत बात। बात ये है कि देखें, यहूदी का कंटेस्ट पता है क्या है कि सादिक खान के मुकाबले में एक यहूदी को सपोर्ट करना, ये कोई मजाक बात नहीं। हकीम सईद ने क्या कहा इमरान के बारे में अपनी किताब में, देखे ना, लोग अगर क्या आपको या किसी भी पार्टी लीडर को आपके राइट देता है कि चले अभी उसकी बीवी नहीं है, उसके बच्चों की मां तो है ना, आप ये कहना कि अपनी बीवी को इस्तेमाल करके ये शख्स प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, ये कहाँ की डिसेंसी है सर? वो भी, और आप इसहाक डार जैसे लीडर के मुंह से। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, उसको दोबारा चलाएं सर, अभी अगर नहीं है ना वो हिस्सा दोबारा चलाएं जरा, मैं जरा ये क्लियर कर दूं। किस मुंह से तुम 62 की पिटीशन डालते हो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? अपने गिरबान में झांको तो तुम्हें नजर आएगा कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। वो तो उस जमाने में भी जब मुशर्रफ पीक पे था तो उनकी वो अपना जूतियां चाटते थे। वो यहूदी ब्यूटी को लेकर जाके वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं, और आज आप भी फितरे का सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। जिस दिन से सर JIT का ये मसला, बल्कि उससे पहले से शुरू हुआ है, आपके लीडरान उनकी औरतों पे पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। अब तक उन्होंने मरियम बीबी पे ऐसी कोई बात नहीं की। कौन सी औरतों पे? डंपर किसने कहा? ट्रैक्टर ट्राली किसने कहा? मुराद सईद की बहनों के बारे में मुगल्लज़ात किसने बोली? सर आपके लीडर की तरफ से आई है ना सर? अच्छा भाई, बात यह है कि ये जो ट्रैक्टर ट्राली कहा था एक साहिबा को, जिसने भी कहा था, ये को गाली तो नहीं दी ना उन्होंने? और इमरान खान की आपने देखे, आप जैसा बंदा, नहीं मेरी बात सुने, सियासी स्ट्रगल करने वाला बंदा जस्टिफाई कर रहा है। नहीं जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा जी, मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये कोई गाली तो नहीं दी ना उन्होंने? आप इसे गलत समझते हैं? मैं तो इसको गलत समझता हूँ, मैं इसको ठीक नहीं समझता। इसको भी गलत समझते हैं? किसको? जो इसहाक डार ने कहा। देखिए, ये जो बात अभी मैंने दोबारा सुनी है, इसका वो मतलब जो आप ले रहे हैं वो नहीं है। चलिए आप मुझे एक्सप्लेन करें। इसका मतलब ये है कि यहूदी लॉबी को इस्तेमाल किया गया यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इसका मतलब ये है। तो मैं कह रहा हूं यहूदी ब्यूटी का लफ्ज जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? ब्यूटी का लफ्ज उन्होंने जो फिर अब ये हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल होता है ना सर? हनी ट्रैप के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है? औरत का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, लेकिन अब ये देखिए ना, ये कहाँ बात पहुंचा दी। लेकिन वो इमरान खान वजीर आजम बनना चाहते थे, उसके बाद जहांगीर तरीन भी बनना चाहते थे, वो भी यहाँ पे पैसे लेके बैठे रहे थे बड़े अरसे तक इस्लामाबाद, और बड़ी अखबारों में खबरें आती थी। लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, काश ये जो आप ये जो दिखा रहे हैं ना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि इमरान ने जो गंदे अल्फाज लोगों को कहे हैं उस पे आपने या आपके प्रोग्राम में ये दिखाया गया हो कि ये देखो ये गंदी बातें कर रहा है, लोगों के बारे में लोगों की पगड़ियां उछाल रहा है। मैंने नहीं ऐसे मैं आपको लिंक भेजूंगा उसका, मैंने प्रोग्राम अगर है तो चलवाए, मैं ब्रेक के बाद चलवाता हूँ। इमरान कि नया क्लिप नहीं होगा, मेरे अपने प्रोग्राम का क्लिप होगा। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है, इमरान खान ने कभी शरीफ फैमिली की किसी औरत पर बात नहीं की सर, लेकिन आपकी तरफ से नहीं, आपकी लीडरान की तरफ से। अब ये कैलिफोर्निया वाला केस, मैंने तो इसकी बात ही नहीं की अभी। नहीं, बात देखा ना, बात ये है कैलिफोर्निया के केस की तो बेशुमार लोगों ने बात की, और वो एक हकीकी केस तो है ना। अच्छा, मतलब अदालती केस है। अब बात यह है कि आप के मुंह से जब 62 और 63 की बात करेंगे तो फिर इसका क्या जवाब होगा? सर ये JIT से पहले याद नहीं है आपको कि इतना बुरा है इमरान खान? नहीं, इतना करप्ट है इमरान खान? नहीं, हमें तो उससे पहले भी याद है, हमने बिल्कुल कहा। आप करते हैं ना कुछ? हमने तो हमेशा किया है, हमने तो हमेशा कहा उसको। आप तो अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इश्तेहारी है, आप उसे पकड़, आप तो कुछ नहीं कर रहे। जिसने भी पकड़ना है, लेकिन हमने कहा तो है ना। तो किसने पकड़ना है सर? इंडिया से तो फौज। और भी बात है, एक और भी बात है, हमें जरूरत भी नहीं है, वो तो खुद कि मैं हूं ये, तो पकड़े ना उसको। या देखें, ये बात जो है ना यहाँ पे रुक जाया करें। मेरी बात सुने, आपके पर जलते हैं। नहीं, पर नहीं जलते, नहीं पर नहीं जलते, पर नहीं जलते।
जब पकड़ते हैं ना तो फिर आप पता क्या कहते हैं कि जी जमशेद दस्ती से ज्यादती हो गई, फलाना हो गया, वो झूठ बोल रहा है और आप लोग उसे सच बना के पेश कर रहे हैं पूरे मीडिया हम ये तो नहीं कह रहे कि आपने पकड़ा क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि सांप बिच्छू को छोड़ रहे हैं उसके सेल में, वो गलत है ना, पकड़े आप, वो प्रोसिक्यूट करें, गलत साबित हो गया, उसमें तशद्दुद नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। अब हम नहीं कह रहे, नहीं आप इसलिए नहीं कह रहे, उसे छोड़ दिया। आप इमरान खान को पकड़ेंगे ना फिर आप ये कहेंगे हाय हाय, हम क्यों कहेंगे, मेरा कोई लगता है इमरान खान, नहीं लगता नहीं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। बात ये है कि इमरान खान को पकड़ा गया या नहीं ये सेकेंडरी बात है। मेरी बात सुने एक सेकंड, असल बात ये है कि उसने ये काम किए हैं या नहीं किए, हमने पकड़ा या नहीं पकड़ा वो हमारा जुर्म है, वो बाद में बात करें, लेकिन यहाँ पे रुक जाया करें। जब आप एकदम ये कहते हैं ना पकड़ते क्यों नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उल्टे काम करता है वो ठीक करता है, क्योंकि आप पकड़ते हैं, आप जस्टिफाई करते हैं, आप पकड़ेंगे नहीं तो साबित कैसे कर पाएंगे कोर्ट में से, इल्जाम है जैसे आप पे इल्जाम है, हर चीज कभी साबित नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने कुछ किया नहीं। अगर पकड़ लिया तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कैसे करेंगे, ये वक्फा ले लो सर। ये आर्गुमेंट बेसिकली पीटीआई का इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। बुक का खर्चा ना एटीएम का, साथ इंटरनेट बैंकिंग, पे ऑर्डर और ऑनलाइन बैंकिंग बिल्कुल फ्री, और तो और कम से कम बैलेंस की कोई शर्त नहीं, खर्चा कम सहूलत ज्यादा। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। रॉयल फैंस लाया पाकिस्तान का फर्स्ट एनर्जी सेवर फैन, बिल पे 60% सेविंग गारंटी, यूपीएस पे चले दुगना, ओनली फैन जो एनर्जी सेव करे मगर परफॉर्मेंस पे करे नो कॉम्प्रोमाइज। ये है रॉयल फैंस का वादा, लाइफ टाइम गारंटी के साथ। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। दादी को बुला लें। और अरबों पनामा में डूब गए। इसके अलावा देखिए, रिहाई मिल ही गई। घोड़ों से भत्ता।
सदर है या भांड? और लोहार सुरीला गुलूकार। किसी से ना डरूं, यार जी ले, सोचता क्यों है क्या होगा इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, मैं अब ये थोड़ी सी गुफ्तगू टॉपिक से हट के इसलिए करूंगा, मैंने मुशाहिद साहब से वादा किया कि हमारे इस प्रोग्राम में जो इमरान खान साहब ने जुबान इस्तेमाल की वो भी हमने चलाई, वो भी हमने दिखाई। जरा सुन ले इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि मैं मुशाहिद साहब का शिकवा दूर कर सकूं। सुनिए जरा। अचक नहीं का जरा ड्रामा सुनो, बड़ी चादर पहनी हुई ऐसे करके बड़ा कोई लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अध्यक्ष से, मैं भी क्या बड़ा कुछ मलंग आती है। मैं पीपल्स पार्टी को कह रहा हूं कि आप भी जिस तरह MQM ने -1 फॉर्मूला निकाला, आप भी -1 फॉर्मूला लेके आए। जरदारी से अपनी जान छुड़ाएं अगर आपने अपने आप को बचाना है।
मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। ना मौलाना डीजल मैं तुम्हें माफ करूंगा, ना पाकिस्तानी कौम तुम्हें माफ करेगी। और मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान को कोई देख के मुसलमान होगा? ये गुफ्तगू सर मैं चला चुका हूँ अपने प्रोग्राम में, लेकिन इसमें एक सिर्फ चीज़ है कि इमरान खान के मुंह से अभी तक मैंने ये नॉट दैट कि मेरा कुछ उसके साथ कोई रिश्ता है या कोई लगता है मेरा वो, मैंने अब तक किसी शख्स की बीवी, बहू, बेटी, औरत के हवाले से गुफ्तगू नहीं सुनी। लेकिन ये शिकायत आपके लीडरान की तरफ से जरूर आती है सर। कम से कम इसको सर ठीक करने की कोशिश करें कि भाई गलत है ये। हमारे लोग जो हैं उनमें इतनी ज्यादा डिसेंसी है, कोई मैच ही नहीं है। आप पीटीआई से मैच ना करें बिल्कुल। इमरान खान और उनके लोगों ने जो कल्चर बनाया है ना इस मुल्क में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या उनके जलसे जुलूस हो या उनके मामलात हो, उसका पीटीआई से कोई मुकाबला, पीटीआई का पीएमएलएन से कोई खिलाफ बात की है सर, उस कल्चर के खिलाफ वो की है ना। तो आप उसको हमें ये ना कहें एक आदमी ने इंडिविजुअली अगर कोई हरकत ऐसी की है तो इसका मतलब मुस्लिम लीग नून का एक अलग कल्चर है। मियां नवाज शरीफ के मुंह से आपने कभी एक गंदा लफ्ज सुना? देखें बात जब भी सुन चुके हुए हैं नहीं, क्या उन्होंने कहा हुआ है? क्या कहा है? उन्होंने अपनी एक तकरीब में कहा था अपनी खवातीन को मुखातिब करते हुए कि आपकी खवातीन जो है ना, मतलब जो हमारी खवातीन है उनके धरने में जो कुछ होता है वो तो अल्लाह की बना, हमारी खवातीन जो है वो डिसेंट है। यानी आप मियां साहब ने इनडायरेक्टली पीटीआई की खवातीन को बात सुना दी थी। मियां साहब बात सुना दी, उस तरह से नहीं है वो जिस तरह से आप इसको ले रहे हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त भी तो है ना भाई, इसमें कौन सी कोई गलत बात है? इस तरह तो हर किसी के क्लोजेट में कोई ना कोई स्केलेटन है। नहीं ऐसे नहीं है। जाती जिंदगी पर निकालनी होगी। कोई जाती जिंदगी की मैं बात नहीं कर रहा, न करनी चाहिए, किसी की जाती जिंदगी को छोड़ें। और वैसे लीडर की कोई जाती जिंदगी नहीं होती। मैं आपसे कह ये रहा हूं, आप एक तरफ हमारे किसी छोटे से लीडर की बात करते हैं, दूसरी तरफ भाई आप इमरान खान रोजाना, कल जो उसने लैंग्वेज छोटा लीडर नहीं है, सुने छोटा लीडर, कल जो उसने लैंग्वेज यूज की है कितनी दफा आज दिखाया? नहीं दिखाया ना, मीडिया उस तरह से नहीं दिखाता। सर अगर मुशाहिदुल्लाह का इंटरव्यू है तो मैं मुशाहिदुल्लाह के साथियों की बातें भी दिखाऊंगा ना, मैं सवालात जो मुशाहिदुल्लाह से करने हैं मैंने। इमरान खान के जब इंटरव्यू होगा तो इमरान खान को उसका कट्टा दिखाऊंगा। पाकिस्तान को पता है कि हमारी लीडरशिप जो है कोई गंदी बात, गाली गलौज आगे बढ़े, नहीं करती, आगे लेके पीटीआई करती है। ये सारी दुनिया आगे लेके बढ़ते हैं। वो अगर वो भी गलत करती है तो बहुत गलत करती है, गलत कहते हैं। साद रफीक साहब ने एक और बड़ी अहम बात की जी, पूरे जेआईटी के मामले जहां वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ये इमरान खान है इसके पीछे, और अगर इमरान खान ये सुन ले, अगर हम घर जाएंगे तो फिर इमरान खान भी घर जाएंगे। जरा सुन ले उन्होंने क्या कहा। इस पर जो सवालात उठते हैं वो मुशाहिदुल्लाह साहब से करेंगे, सुनिए जरा। प्रोपेगेंडा करना, इल्जामात लगाना और ये समझना कि एक मुखालिफ गिर जाएगा तो मेरी बारी आ जाएगी। खान साहब हम गिरे तो आपकी बारी नहीं आएगी, आप हमारे साथ ही गिरेंगे। हमें गिराते गिराते आप गिर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप गिरें, यकीन करें हम नहीं चाहते कि आप गिरें, क्योंकि सियासत तन्हा नहीं की जा सकती जब तक मुखालिफ सामने मौजूद ना हो, चैलेंज करने वाला मौजूद ना हो। खान साहब हमें गंदा करते करते आप खुद गंदे हो रहे हैं और हमें डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। ये आग का खेल है, ये ना हो कल आपको फिर हमारे साथ ट्रक में चढ़ना पड़ जाए। शाह साहब क्यों लगता है आपकी क़यादत को, आप तमाम लोगों को, कि अगर मियां साहब गए तो पूरा सेटअप जाएगा, दीगर सियासी कायदीन और बिलखुसूस इमरान खान भी जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है? यूसुफ रजा गिलानी जब घर गए थे तो सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी घर गए थे, सेटअप घर नहीं गया था। मियां साहब क्या जो है वो वाहिद शख्स हैं जो सेटअप को संभाले हुए? देखें ये बात और कर रहा है। अब यूसुफ रजा गिलानी की भी बात कर लेते हैं। यूसुफ रजा गिलानी पे एक मुकदमा था, उस पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। उसमें और इसमें का कोई मुकदमा ही नहीं है, ठीक है, कोई FIR ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जब फर्द जुर्म आयद हो जाए ना तो उसके बाद जवाज आप खो जाते हैं, इसको छोड़ दें। दूसरा जो आप है ना जी कि जी ये जो साद रफीक, मुझे नहीं पता, देखे हर आदमी का अपना कंटेस्ट होता है। आपने मेरे से सवाल किया है, मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ। मुझे नहीं पता कि साद रफीक के जहन में क्या बात थी। मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि शायद साद रफीक के जहन में यही बात हो। मसलन 99 में जब हमारी हुकूमत गई 12 अक्टूबर को, तो उससे पहले एक अलायंस बना, उसका नाम था GDA। उस अलायंस में पता है कौन कौन था? याद है आपको? नहीं याद? मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर नहीं भी याद है तो क्यों, आप उम्र में कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जाहिर है हर बात नहीं पता होगी आपको।
GDA जो है उसमें ताहिरुल कादरी थे, उसमें इमरान खान थे, उसमें MQM थी, उसमें पीपल्स पार्टी थी। इन सब ने मिलकर एक नुक्ते की बात की कि नवाज शरीफ हटाओ, तहरीक चलाओ। हट गया ना, ठीक है। उसके बाद की गिरे ना सारे। बिल्कुल ठीक है। तो साद रफीक ने क्या गलत बात कह दी? यानी उस वक्त जो इदारा उनके साथ था, इदारा अगर JIT के पीछे था जिसने असल में नवाज शरीफ को घर भेजा, आज भी आपको लगता है कि नहीं? बाकायदा मैं आपको बाकायदा बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खत्म होगा, चेक कर लीजिएगा। मैं को फजूल बात, नवाज शरीफ हटाओ, एक नुक्ता ये पे इत्तेहाद, वो नवाज शरीफ हट गए, हालांकि कोई जवाब नहीं था। मतलब उस वक्त बिजली सरप्लस थी हमारे पास, हालात ठीक थे, सारी चीजें थी, मोटरवे बना, ये हुआ, तैयारा हवा में हाईजैक हो गया था सर। वो तैयारा हो ही नहीं सकता ना, वो तो मतलब कि कोई ना कोई जवाब तो बनाना होता है ना। इसके अलावा मोटरवे बनी और न्यूक्लियर पावर बना पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। ये उन्हीं 2-2.5 साल में हुआ, ठीक है ना। ये कोई ऐसी काम नहीं था जिस वजह से ये होना था। वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, उस पर किताबें लिखी गई। आज भी आपको लगता है वही किरदार? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, आपने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि रफीक ने जो ये बात की है, ये कल की बात आपको बता रहा हूँ कि ये आज जिस तरह से सारे ये इकट्ठे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, JIT के फेवर, JIT के सारे तर्जुमान बने हुए हैं। कभी खुर्शीद शाह की तकरीर सुन लें, इमरान खान तो रोज तर्जुमानी करता है, बल्कि उनके जो अगले पिछले हाली मवाली हैं, मतलब के जो जाली उनके जो वो स्कॉलर बने फिरते हैं, वो सारे तर्जुमान बने हुए हैं। भाई तुम कौन होते हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये तो तुम्हारे लिए बनाई है। तो तुम तो कल तक गालियां देते थे। तो फिर आप तनकीद, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, अगर तर्जुमानी करना गुनाह है, तो फिर तनकीद करना भी तो गलत होगा ना। बात ये है, हम सियासी जमात हैं, हम मतलब के कोई स्कूल नहीं चला रहे, हम सियासी जमात चला रहे, ठीक है, हम कोई NGO नहीं चला रहे। बात यह है कि हमें पब्लिक परसेप्शन के लिए अगर कोई बात होगी उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम जरूर देंगे। सियासी जमात जवाब आपको देना चाहिए। लेते हैं के बाद कुछ और बात। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में
मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। निशात साहब, हर तरह के फैसले और हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला अगर आ जाता है फर्ज बिल महाल, तो कोई प्लान भी तैयार है आपकी पार्टी की तरफ से? कोई क़यादत, सेकंड ईयर की क़यादत जो सामने आएगी? ये जो फर्स्ट क्रिएट क्या सब बनाया हुआ है ना लोगों ने, कुछ भी नहीं है। देखें 10 तारीख को JIT ने अपनी जो भी रिपोर्ट है वो नज़र भी आ रहा है क्या रिपोर्ट देंगे, वो मशकूक हो चुके हैं, अपने आप को कर लिए। वो मानेंगे भी नहीं गालिबन आप? वो माने या ना माने वो तो बात। JIT कौन सी ऐसी चीज होती है जिसको मानना या ना मानना जरूरी है? JIT तो कोई चीज JIT ने कौन सा फैसला देना, उसे तो रिपोर्ट ही देनी है। JIT के पता नहीं, हर JIT के मतलब के फाइंडिंग मुस्तरद ही होती हैं, और ये JIT वाहिद JIT है। इससे पहले किसी JIT ने ये काम नहीं किया। इन्होंने अपने आप को खुद से मुतनाज़ा कर लिया है और ओपनली इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो बाइस्ड है। तो फिर मतलब के उसको तस्वीर का लीक करना, उसी को आप और बहुत सारी बातें नहीं, और बहुत सारी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऐसी कौन सी आप क्या हो गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, मतलब के ये कहा तो जा सकता है क्या हो गया, आपको क्या नुकसान हो गया, तो फिर और भी बहुत सारी बातों से आपको क्या नुकसान हो गया मैं कर सकता हूँ, करना नहीं चाहता। बहुत सारी बातें हुई हैं, इसी में हम सवाल कर सकते हैं आपका क्या नुकसान है इसमें। इसको छोड़ दें, ये जो हुदैबिया है इनका क्या नुकसान है, मुल्क का क्या नुकसान है? ठीक है, 4 फ्लैट ले लिए हैं, आपका क्या नुकसान है? अगर नुकसान ही पता करना है ना तो फिर आपका नुकसान है, हमारा कोई नहीं है। ठीक है, हमारी तस्वीर लीक नहीं होनी चाहिए, हमारी व्हाट्सएप कॉल नहीं होनी चाहिए। अब तो ये कहा जा रहा है कि जी इनसे सिर्फ साइन कराए जा रहे हैं, ये कह दिया जाए आपका क्या नुकसान, फिर आपका भी कोई नहीं है। वो कहते हैं वो तो जी आवाम के पैसा था ना, आवाम का टैक्स का पैसा था। खैर कहाँ पे था, कहाँ साबित हुआ? वही तो कह रहे हैं ना, इल्जाम यही है ना सर, इल्जाम नहीं, इल्जाम कोई चीज नहीं होती। इसको छोड़िए सर, मेरा असल जो सवाल था, इल्जाम बड़ी जमात है, ठीक है, आपको इस बात का यकीन है, मियां साहब को खुद भी यकीन है कि वो बेगुनाह है, उनके बच्चे बेगुनाह है, उन्होंने फर्ज करें है सर, कभी हवा मुखालिफ चल पड़े और कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो फिर बड़ा, तो मुखालिफ अगर आपके हवा चल भी पड़ी है और आप बेगुनाह भी हैं, अगर कुछ हो भी जाता है तो इतनी बड़ी जमात ने कोई प्लान भी तो रखा होगा ना अपने पास। किस्मत खराब है नवाज शरीफ की, जो 3 दफा वजीर आला रहा हो और 3 दफा वजीर आजम रहा, ऐसे आदमी की किस्मत खराब हुई है। इतना भारी मैंडेट लेके दूसरी दफा आया था तो किस्मत खराब थी तो चला गया ना घर वापस, जाता तो छोड़ के चला गया। हर आदमी जो आता है ना वो जाने के लिए आता है, इस तरह का जाना तो अल्लाह किसी को ना भेजे। भारी मैंडेट लेना असल बात है, कितनों ने लिया, भुट्टो ने नहीं लिया इतना भारी मैंडेट। असल सवाल ये है, तो किस्मत सारी ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, किस्मत ठीक होना या ना होना एक अलग बात है, बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली होती हैं वो हो जाती। चीज़ ये है कि अब इनकी जो रिपोर्ट है उसको कौन सा बेंच सुनेगा,
क्या वही सुनेगा या कोई नया बनेगा, मुझे नहीं पता। और जाहिर है उस पर बहुत सारी बातें होंगी, फिर वो बेंच जो भी होगा वो सुनने के बाद जो भी फैसला करेगा उसमें भी लार्जर बेंच में जाया जा सकता है। तो ये बात कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ ऐसे जा रहा है जैसे 10 जुलाई को फैसला होने वाला है। ये इनका तो इख्तियार ही नहीं है फैसला करने का, जिन्होंने 10 जुलाई को रिपोर्ट देनी, इनका कोई इख्तियार नहीं है। ये मुलाजिम पेशा लोग हैं, इनका क्या इख्तियार है। इनके ऊपर अगर एक GIT बना दें और जिस तरह से ये सवालात लोगों से करते फिर रहे हैं, इनसे और इनकी फैमिली से शुरू हो जाए फिर, तो ऐसा सब, यानी कि आप इम्कानात जाहिर कर रहे हैं जो मैं इम्कानात जाहिर नहीं कर रहा। मैं पता क्या समझता हूँ, मैं खुद आप हम बहुत सारी बातों के जवाब नहीं दे सकते जैसे ये सवाल कर रहे हैं। बहुत सारी, मुझे पता नहीं मैंने ये कोट कब खरीदा, कहाँ से खरीदा, मुझे क्या पता, मैं इसकी मनी ट्रेल कहाँ से दूँ। आप भी नहीं दे सकते बहुत सारी बातों को। लोग घरों में रहते हैं, नहीं बता सकते कब खरीदा था, कैसे खरीदा था। ये इसी तरह के सवालात कर रहे हैं ना, तो ये तो किसी से भी हो सकते हैं भाईजान, को पता थोड़ी होता वक्त का। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसके इस पूरी चीज में अगर आपको कोई शबा नहीं है कि एक तो आप बेकसूर हैं और होना भी कुछ नहीं क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं, तो जबान में मुशाह साहब इतनी सख्ती क्यों है? इसहाक डार ले लें, इसलिए उस दिन आपने भी जब PID में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी जुबान भी सख्त थी, तो क्यों है इतना जोश? उसकी वजह पता क्या है, सारा दिन गाली बकते हैं ये हमें, सारा दिन। तो कभी कभार हमें भी उसका जवाब तो देना होता है ना, वरना पब्लिक पता कहीं रह गए। अच्छा तो भाई हम भी सियासत में है ना, हम रह नहीं गए। रह वो जाता है जो इलेक्शन हारता है, हमेशा मर्ज है। देखिए असल सवाल ये है कि कुछ लोगों को ये पता लग गया कि इलेक्शन तो नवाज शरीफ से जीत नहीं सकते, और वो इस बुरी तरीके से हारते हैं। मतलब ये भी नहीं है कि कोई एक ऐसी बाइज्जत हार हो जाए। देखें ना, अभी आखिरी मिनट रह गया है। मैं सिर्फ जाते जाते एक बात, अब जो आज सारा दिन हुआ, इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की, जिसको आप कंडेम तो नहीं कर रहे, मार्गरेट थैचर ने कहा था कि जब आपके मुखालिफ जो है ना आपका, जब वो आपकी जाती जिंदगी पर, आपकी जातियात पर उतर आए, तो उससे ये साबित होता है कि उसके पास आपको पॉलिटिकल आर्गुमेंट रह नहीं गया, जातियात पे आया ही नहीं। सर ये जो अभी इसहाक डार साहब मुझे बता दें, नहीं कुछ नहीं कर रहे। जो चीजें यहूदी ब्यूटी वाली बात तो कंडेम नहीं करते। नहीं, कोई वो जातियात की बात नहीं है। यहूदी, मैंने तो बता दिया है कि भाई यहूदी ब्यूटी भी हो सकती है, क्रिश्चियन भी हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है ना। ऐसी कोई बात उन्होंने की है। और वो जो कैलिफोर्निया की बात है, देखो ना, वो ना करें अलग बात है, लेकिन वो जो टेरेंस सीता वाइट है उसके वालिद मोहतरम तो इमरान खान ही है। इस पे ही बात की है ना, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इतनी ही बात सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।